to my YouTube channel The French Hub. In today's video we'll start with the chapter number 5 of Oshante 4. हमारा चैप्टर नंबर 5 है लर ड्यू कॉन्ट मीन्स स्टोरी टाइम. तो कॉन्ट का हमारा मीनिंग क्या होता है? स्टोरी, और या फिर आप लोग कह सकते हो टेल. तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी ग्रामर पार्ट्स हैं हमारा उसको हम कवर करेंगे एंड इन टेक्स्ट पार्ट को भी जो है साथ में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग दिस इन टेक्स्ट पार्ट. It says, dans la chambre de la grand-mère de Dennis, means in the bedroom of Dennis' grandmother. So Madame Leroy is the grandmother of Dennis. So she says, bonjour mes enfants, c'est toujours un plaisir de vous voir ici. Means hello or good morning my children. It is a pleasure to see you all here. Then Jen, bonjour mamie. Hier soir, nous sommes allés au théâtre pour voir une pièce. Means good morning मामी. मामी क्या होता है? ग्रैनी. ठीक है, मामी का मीनिंग होता है ग्रैनी. Hier soir means yesterday evening. Nous sommes allés means we went to the theater to see a play. अब जो हमारा PS होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो हमारा पीस होता है. पीस, PIECE वाला पीस. ठीक है, बट यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमारा मीनिंग यहाँ पर चेंज हो गया एंड यहाँ पर हमारा PS का मीनिंग है प्ले. ठीक है, प्ले देखने गए थे वो येस्टरडे इवनिंग को. फिर सोफी कहती है वी से यून अडेप्टेशन ड्यून कॉन्ट फैंटास्टिक. मीन्स येस, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ फैंटास्टिक स्टोरी. ठीक है, देन जो उनकी ग्रानी होती है शी सेज ओ c'est vraiment bien les histoires avec des monstres, des génies, des fées, c'est génial. Means oh it's really good. The stories, histoire क्या होता है? stories with monsters, genies and fairies, they are amazing, they are nice. c'est génial means nice. ठीक है, this is nice. फिर नेक्स्ट पेज पर हमारे पास डेनिस ही सेज oui, elles sont très intéressantes, ces histoires. On les adore. Means yes, these stories are very interesting. We love them. Then जो उनकी ग्रानी होती है Madame Leroy, she says, voulez-vous lire ces histoires? Means do you want to read these stories? J'ai beaucoup de livres de contes dans mon armoire. Means I have a lot of books. I have a lot of story books in my almirah. Je peux vous donner quelques livres. Means I can give you some books. Then Philip कहता है oui bien sûr. Means yes of course. आगे après une heure means after 1 hour. Sophie, ce conte est super. Quel conte as-tu lu, Denis? Means this story is superb. Which story have you read, Dennis? Dennis कहता है un trésor perdu qui s'agit d'un groupe d'hommes qui est arrivé sur une île isolée. Means the lost treasure, which is which this story is of a group of men who have arrived on an isolated island. Ils ont dû passer par des obstacles et ils ont affronté au monstre. Means they have passed from the obstacles and they have confronted to the monsters. Mais enfin means but finally ils ont trouvé le trésor dans une grotte. Means and finally they found the treasure in a cave. Grotte क्या होता है? Cave. Et toi, qu'est-ce que tu as lu? Means and you, what you have read? Sophie बताती है moi je préfère les contes de fées, donc j'ai lu Blanche-Neige. Means I like fairy tales, so I read Snow White. Les nains sont rentrés chez eux où ils ont rencontré Blanche-Neige, une très belle fille. The dwarfs, आपने सुना होगा 7 dwarf हैं हमारी स्नो वाइट की स्टोरी में. तो ना हमारा क्या होता है? dwarfs. ठीक है, the dwarfs have So the dwarfs went home where they met Snow White, a very beautiful girl. À la fin de ce conte, un prince
sauve la belle Blanche Neige means at the end of the story a prince saved the Snow White. ठीक है. फिर Philip, j'aime les aventures donc j'ai lu l'histoire d'Aladdin means I love adventures so I read the story of Aladdin. Il a un singe et un génie très drôle means he has a monkey and a very funny genie. Aladdin a redonné la liberté au genie means Aladdin has given liberty to the genie. Ils ont fait un long voyage où ils se sont battus contre des pirates means they made a long journey where they fought against the pirates. जॉन कहता है ए moi j'ai lu le petit chaperon rouge. तो petit chaperon rouge इट इज़ अ स्टोरी नेम जो कि जॉन ने पढ़ी. Un jour, une petite fille, elle est partie pour aller chez sa grand-mère. Means one day, a little girl left to go to her grandmother's house. Elle a apporté un petit pot de beurre et une galette pour sa grand-mère. Means she brought a small jar of butter and a cake. Galette क्या होता है? It is a sort of cake. एक variety of cake होता है. Pour sa grand-mère for her grandmother. Mais dans le lit, elle a trouvé un loup au lit de sa grand-mère. Means but in the bed, she found a wolf at the place of her grandmother. Le loup a tué la grand-mère. Means the wolf had killed the grandmother. C'est triste means it's sad. La morale de cette histoire est qu'on ne doit pas faire confiance aux inconnus means इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें किसी पर आसानी से जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट 2 पेजेस के अंदर हमारे पास इस टेक्स्ट के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं जो भी हमने इस टेक्स्ट के अंदर पढ़ा. आप लोग इन क्वेश्चंस को रीड आउट करना. अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो मुझसे कमेंट्स में पूछना. आई सॉल्व देम फॉर यू. फिर नेक्स्ट आते हैं हम हमारे ग्रामर के टॉपिक्स पर. एज़ यू ऑल नो हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी प्रीवियस चैप्टर की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पासे कॉम्पोजे की जो है बिगनिंग कर दी थी. हमने देखा था कि पासे कॉम्पोजे अवुआर वर्ब के साथ कैसे वो हमने यूज़ करना है. ठीक है. अब हम बात करते हैं एत्र वर्ब की. जो वर्ब्स एत्र यूज़ करती हैं व्हेन दे आर फॉर्मिंग देयर पासे कॉम्पोजे. ठीक है. तो ये जो वर्ब्स हमारी पासे कॉम्पोजे में एत्र का यूज़ करती हैं वो उनको तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा. वेनीर, रवनीर, सोरतीर, partir, entrer, rester, monter, descendre, then aller, tomber, rentrer, arriver. तो ये सारी जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं उनका पासे कॉम्पोजिट जब भी हम फॉर्म करते हैं तो उनके साथ हमारी एत्र वर्ब का है जो यूज़ होता है. अब हम कुछ रूल्स हमारे पास दे रखे हैं आगे की तरफ. लेट्स सी इट. So all the verbs shown in the above picture are conjugated with eth in the past tense. These verbs are the verbs that represent movement. ठीक है. ये verbs हमारी क्या है? मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं. तो जो verbs मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको हमने क्या करा? eth verb के साथ पास्ट कॉम्पोजिट में कॉन्जुगेट करने के लिए डाल दिया. ठीक है. मुरीर और नेत्र हमारी एक्सेप्शन है क्योंकि मुरीर ना तो हमारी कोई मूवमेंट शो कर रही है और ना ही नेत्र. मुरीर मीन्स टू डाई, नेत्र मीन्स टू बी बॉर्न. तो ना हमारी कोई मूवमेंट शो हो रही है बट स्टिल दे आर कॉन्जुगेटेड विद एत्र वर्ब. ठीक है. हेयर आर दी वर्ब्स विद देयर पास्ट पार्टिसिपल. अभी जो इनके पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ना जितनी भी वर्ब्स हमने देखी पास्ट पार्टिसिपल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ई आर का, आई आर वर्ब्स का एंड आर ई वर्ब्स का. एंड कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे. ठीक है. जिनका इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल होता है. तो इन वर्ब्स का भी इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल होता है जो कि यहाँ पर आपको लिस्ट में दे रखा है. इनको रीड करना है एंड इनको याद करना पड़ेगा. ठीक है. अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट रूल की कि जो भी हमारी वर्ब्स एत्र वर्ब के साथ कॉन्जुगेट होती हैं इन द पासे कॉम्पोजे तब हमारे वो नाउन जो सब्जेक्ट है जो हमारा नाउन है उसके जेंडर और उसके नंबर पर डिपेंड करती है. हमने प्रीवियस चैप्टर पे एक बार मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ. सी प्रीवियस चैप्टर में यस. अब देखो अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया. सपोज़ मैं कहती हूँ एल आ शोंते. ठीक है. सिंपली मैंने कहा एल आ शोंते. तो आप लोग कहोगे एल यहाँ पर क्या है? हमारा फेमिनिन है. बट फिर आप लोग कहो एत्र के केस में क्या होता है? अगर यहाँ पर हमारा ना एत्र लगा होता
तो हमारा जो शोंते वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी ना सब्जेक्ट हमारा क्या फेमिनिन है, तो शोंते के पीछे एक और ई लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। सिर्फ ये हमारे एत्र के केस में होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारा नाउन चेंज हो वर्ब चेंज हो जाती है। बट अवुअर के केस में, अवुअर जिसके भी साथ यूज़ होता है उसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये था हमारा एक सिंपल सा रूल जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो एस लग जाएगा, अगर मैस्कुलिन प्लूरल है तो सिंपल एस लगेगा, अगर फेमिनिन है तो ई लग जाएगा, अगर फेमिनिन प्लूरल है तो ई एस लग जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेगेशन कैसे होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, अवगार के आगे पीछे न और पा लगता है, तो वैसे ही एत्र के केस में जो हमारी एत्र वर्ब होती है उसके आगे न एंड एत्र के बाद लगता है पा एंड ऐसे हमारी नेगेशन फॉर्म हो जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ज स्वी आले, अब हमारे ब्रैकेट में ई क्यों दे रखा है, क्योंकि ज हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज फेमिनिन भी हो सकता है एंड इट कैन बी मैस्कुलिन ऑल्सो, ठीक है। तो इस वजह से ब्रैकेट में ई दे दिया फॉर फेमिनिन, ठीक है। अगर मेरे को इसी को ज स्वी आले को मेरे को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, स्वी के आगे न एंड स्वी के बाद पा हमारा लग जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी बात आती है इंटेरोगेशन की। जैसे कि हमें पता है 3 फॉर्म्स होते हैं हमारी इंटेरोगेशन की पासे कंपोजे में, सॉरी पासे सिंपली नेगेशन की 3 फॉर्म होती है। एक होता है हमारा इंटोनेशन का मेथड, एक होता है हमारा इस का मेथड एंड एक होता है इन्वर्जन मेथड। तो सिंपल है, सबसे पहले इंटोनेशन तो आपको पता है, जैसे कि हम अपनी टोन को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा इंटोनेशन। सेकेंड हमारा आता है इस्क। तो अगर मैं कहूँ आप लोगों को ट्यू ए रेस्ते अला मेजो मीन्स यू स्टेड इन द हाउस, तो अगर मेरे को इसको मैस्कुलिन इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके आगे इस्क पुट कर दूंगी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर दूंगी एंड ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन आप लोगों को पता है सिंपल, जो हमारा नाउन होता है एंड जो हमारी वर्ब होती है उसके बीच में हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउन वर्ब की जगह नाउन की जगह वर्ब आ जाती है एंड वर्ब की जगह हमारा नाउन आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्वर्जन मेथड। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एत्र के केस के अंदर, तो यहाँ पर तो हमारी 2 वर्ब हुई। एक तो हमारी मेन वर्ब, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में हमारे पास ये वाला सेंटेंस था ट्यू ए रेस्ते आला मेजो, मैंने कहा। तो यहाँ पर एक तो एत्र वर्ब है हमारी, एक रेस्ते वर्ब है। तो अब आप लोग सोचोगे कि इन्वर्जन कौन सी का होगा, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ना, मीन्स जो एत्र वर्ब यूज़ होती है उसका एंड सब्जेक्ट के बीच में इन्वर्जन होता है, ठीक है। कैसे होगा, ट्यू ए रेस्ते अला मेजो, तो ए इसकी जगह आगे चला जाएगा ई एस एंड देन हाइफन लगा कर ट्यू एंड जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ ए ट्यू रेस्ते अला मेजो एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्जन मेथड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है, उसको एक बार रीड करते हैं। सर्टेन वर्ब्स लाइक रोंत्रे मोंते रिटूरने descendre sortir एंड passive when followed by a preposition and an object, जब वो ट्रांजिटिव वर्ब्स बन जाती है देन दे आर कॉन्जुगेटेड विद द एत्र वर्ब, बट वेयर एज देर इज़ नो प्रेपोजिशन आफ्टर दीज वर्ब्स, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्लेस हो जाता है हमारे वर्ब के बाद, तब वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है एंड तब वो हमारी अवुआर के साथ कॉन्जुगेट होती है। मीन्स जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी ये सारी की सारी वर्ब, तब वो हमारी एत्र के साथ कॉन्जुगेट होंगी एंड जब वो इंट्रांजिटिव होंगी तब वो हमारी अवुआर के साथ कॉन्जुगेट होंगी, ठीक है। यहाँ पर इतना सही था हमारा पासे कॉम्पोजे का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में एंड इस वीडियो में मिला के हमारी पासे कॉम्पोजे कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हमारे पास ये वोकैबलरी आती हैं एंड देन एक्सरसाइज को ट्राई करना, नहीं हो पाती तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, नहीं तो अभी लंबी हो जाएगी वीडियो, दैट्स वाई। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड ट्राई सॉल्विंग द एक्सरसाइज एज वेल एज दिस इन टेक्स्ट पार्ट की जो एक्सरसाइज उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।